Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It is with profound sorrow that I address you today in the aftermath of the despicable terrorist attack on a school bus in Khuzdar on the early morning of May 21st. This cowardly attack targeted innocent children, our future, resulting in the tragic loss of 7 lives, including 5 children, and 6 children now, and injuries to 31 others. Let me be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. On behalf of the government of Pakistan, I extend our deepest condolences to the families of the victims. We share their grief, and we stand by them in this hour of immense pain that they are suffering. The Ministry of Interior, in close cooperation with the provincial authorities and the law enforcement agencies, are looking into all angles of this dastardly attack. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. Having miserably failed in the so-called Operation Sindoor, the terror proxies of Hindustan have been tasked to accentuate their heinous attacks of terrorism in Balochistan and elsewhere, sabotage development in the region, incite fear amongst the population, and derail the journey of peace and development in an attempt to repeat their playbook of 1971. Let me be absolutely clear here. The people of Pakistan will not let them succeed. Pakistan and its people, particularly those in Balochistan, reject this nefarious design. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. Such actions will have consequences. In the past couple of years, having suffered immense casualties in their attempt against hard targets, Fitna al-Hindustan have now resorted to hitting soft targets. Wayfarers, laborers working on development projects, infrastructure and machinery to paint a picture of loosening control of the state. Much against the traditions and culture of the Baloch, these terrorists have stooped so low that innocent school children have now been targeted. I assure you that the state, in collaboration with the provincial governments and the state apparatus, will defeat them. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. We have the wherewithal and the commitment to bring an end to this violence. Our resolve is firm, and our response will be decisive. They will not succeed. I now request DG ISPR to take on the specifics of the matter at hand. Thank you. Thank you very much, sir. I'll draw your attention to a small presentation that I would like to go through with you. On this slide, you can see it's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades. Because the Indian state-sponsored terrorism actually goes since the inception of Pakistan. 1971 Mukti Bahani incident, the creation of Mukti Bahani, its funding, that terror organization in the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, is a very, very clear manifestation of that. And it keeps on going. But if you see on this slide, and I am focusing mostly on the what's been happening in Balochistan. So in 2009, Pakistan government handed over evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence at Sharm el-Sheikh to then Indian Prime Minister. It's part of the history. The publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history.
2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism. Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav, serving Indian naval officer, who told in detail, confessed in detail to all the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Then again in 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Very recently, the media, international media, has seen self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna al Hindustan, who told that how Hindustan is funding, planning, and carrying out the terrorist acts in Balochistan. And this march goes on daily basis. So this slide just gives you a context behind this cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. So if you come to the next slide, यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो, I would like to go along with you and the nation through this clip of what has transpired. Just see this.
Ladies and gentlemen, this is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत? एंड इज इट वन ऑफ? प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये मैं आपके सामने अप्रैल 2024, तकरीबन एक साल से कुछ अरसा ज़्यादा के वाक़यात रख रहा हूँ, वेयर दिस फितनौल हिंदुस्तान has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. 12 अप्रैल 2024 नोशकी 12 innocent laborers, poor laborers, मजदूरों को शहीद किया गया. 28 अप्रैल 2024 केच में फितनौल हिंदुस्तान ने मजीद 2 मजदूरों को शहीद किया. 9 मई 2024 सुरबंदर ग्वादर 7 बार्बर्स को, हजामों को शहीद किया गया जबकि वो सो रहे थे. दे वर स्लॉटर्ड बाय फितनौल हिंदुस्तान. 28 सितंबर 2024 पंजगूर अनदर 7 पुअर लेबरर्स, मजदूरों को, गरीब लोगों को शहीद किया गया. 10 अक्टूबर 2024 दुक्की में गरीब मजदूरों को, 21 मजदूरों को जो कोल की माइनों में काम कर रहे थे, उनको शहीद किया गया. 13 नवंबर 2024 ज़ियारत 3 मुसाफिरों को, 3 पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन बस, they were martyred again by फितनौल हिंदुस्तान. 10 फरवरी 2025 केच 2 टेलर्स को, 2 दर्जियों को, गरीब 2 दर्जियों को उन्होंने शहीद किया. 14 फरवरी हरनाई 10 मासूम लोगों को एक आईडी एक्सप्लोजन में शहीद किया गया. 19 फरवरी बारखान 7 मुसाफिरों को बस से उतार के शहीद किया गया. फितनौल हिंदुस्तान द इंडियन प्रॉक्सी. 9 मार्च 2025 पंजगूर में दोबारा 3 गरीब हजामों को, 3 बार्बर्स वर स्लॉटर्ड, वर किल्ड, वर मार्टर्ड. देन यू सॉ 11th मार्च जाफर एक्सप्रेस, वेयर innocent civilians, children, including children, women, and people going on leave from the security forces, they were martyred by this fitnatul Hindustan. इस पे आगे डिटेल में हम दोबारा आगे भी बात करेंगे. 26 मार्च ग्वादर में 6 गरीब मजदूरों को दोबारा शहीद करते हैं. और 6-7 मई को जो आपने देखा, उस दिन, क्योंकि उस दिन इस फितनातुल हिंदुस्तान का जो असल बाप था वो खुद आता है और वो भी दहशतगर्दी करता है, मसाजिद को निशाना बनाता है और हमारे 40 सिविलियंस को, जिसमें 22 बच्चे और औरतें हैं पाकिस्तान के, उनको शहीद किया जाता है. इट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम. क्योंकि वो उधर बच्चों को, मासूम लोगों को, मजदूरों को शहीद कर रहे हैं, लेकिन कौम का, बलूचिस्तान के अवाम का रिजॉल्व नहीं तोड़ सक रहे. तो वो कहते हैं हम अपनी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से भी अटैक करते हैं. बट दैट ऑल्सो द नेशन ऑफ पाकिस्तान स्टूड अगेंस्ट इट लाइक ए स्टील वॉल, लाइक बनियानो मसरूर, रिपल्स दैट, रब देयर नोज इन द डस्ट. तो दोबारा अपने काम पे शुरू हो जाते हैं. 9 मई को लसबेला में
3 मासूम बार्बर्स को शहीद किया जाता है। 13 मई को नौशकी में 4 गरीब मजदूरों को उन पे हमला किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। और फिर 21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना अल हिंदुस्तान. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting it, planning it, instructing it. आप ज़रा इस पे सुनिएगा कि इस पे हमारी आवाम ये जो वार है, इनका दुख, इसकी चोट को ज़रा पाकिस्तान के गरीब आवाम से सुनिए ज़रा। हमारे तो पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी कि वो हमारा जवान बेटा था, वो हमारे घर का करता धरता था। तो हमें तो ऐसे हो गया कि जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। हमने हमारा जवान भाई, कुंवारा भाई कब्र में उतारा। हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में कितनी तकलीफ है। मैं गरीबी है अपना बेटा पाले, अपनी रोजी वास्ते नहीं किया, जिगर फटा दी तेन ना मेरे सीने च गोली मारी ने किया होता जोर मारी किया कसूर आई। काम के सिलसिले में बलूचिस्तान गए थे, उसी फ्रूट लेके आ रहे थे और वो राह में शहीद किए गए। मैंने उसको बड़े लाड और प्यार से पाला था, उन्होंने सालों ने भी जुल्म कर दिया मेरे बच्चे के साथ। वो बड़ा था हमसे, तो सारा निज़ाम ही उसके हाथ में था, वो चलाता था। हमारा बाजू था, वो कट गया इस वक्त। मेरा तो एक बेटा जो है तो न जुल्म से कीता, अबे तो बता रहा था इसे सवेरे किया से बोलना आया। एक ही बेटा था, उनका एक ही सहारा था। रास्ते में इन जालिमों ने शहीद कर दिया। मेरा और मेरे सारे बहन भाइयों का खर्चा मेरे वालिद साहब भी करते थे, मुझे उनकी काफ़ी याद आती है। मैं तो उनको धक्के मार के नीचे लगी। आपको कुछ क्या लगता है? नहीं भाई से भाई के तो पाकिस्तान दहशतगर्दी प्ले करन जे रले करे ना मार कर सारे द मजदूर ना पुत्र यारा लिया भाई और छोड़ के मजदूरी रहती तो चला गई। सुते आया को ना मारे आके किते मजदूरी किते गया। तारे छोटे छोटे बाल रोजी बसते गए तो कमावन बसते और रोजी करण बसते गए, अपनी मौत दे के आ गए। मैंने मजदूरी के लिए गए हुए थे, हमारे भाई को बेरहमी से मारा गया है। मुझे पता मैं इतनी दूर से अपने भाई को कैसे लाया। हमको बोला था इसके हम लोग दोनों इकट्ठे जाएंगे। सोना ने मार देता है बच्चे मेरे जिंदगी में मेहनत कर करके बच्चे पाले हैं। एक मजदूर आदमी था और इतना शरीफ आदमी था जिसको दहशतगर्दों ने बिना बेगुनाह कत्ल कर दिया है, जिसको तो ये भी पता नहीं मुझे मारा किसने है। बड़ी बेदर्दी ने शहीद किया गया, गरीब बंदे साਡਾ कोई सहारा सी। हमारे बच्चे को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया, हम देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे बेदर्दी से उन्होंने शहीद किया। ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। वो खुद पूछ रहे हैं। मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक है, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलोचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा डीएनए क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। आप अगली स्लाइड में देखें कि क्या ये, अगर थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं जस्ट अ फ्यू रिसेंट इवेंट्स, तो आपको बड़ी पिक्चर भी समझ आएगी कि ये जो है इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूटेड टेररिज्म है, ये पाकिस्तान में हो क्या रही है। हमने आपको पहले भी ये दिखाया था
कि 25 अप्रैल को जब एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है जेलम में और उसका फोरेंसिक होता है उसके मोबाइल का और बाकी चीज़ों का, तो वेरी रिवीलिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स कम टू लाइफ। ये मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा ये ऑडियो विद ए सर्विंग इंडियन मेजर संदीप, हु इज टॉकिंग विद दिस टेररिस्ट हु वाज कॉट जस्ट लास्ट मंथ ऑन 25th of April। और वो जब उसको रिक्रूट किया, ये वो ऑडियो ज़माने की है जब उसने उसको रिक्रूट किया था, और वो आप सुनिएगा कि इसमें भी बता रहा है कि हम लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में दो सा दहशतगर्दी करवा रहे हैं, करवाते रहे हैं और करवाते रहेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बिहाइंड दिस 21 अप्रैल अटैक ऑन आवर चिल्ड्रन, ऑन दीज गर्ल्स। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सुनिएगा इसे। ये चले आपकी बात, आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है जी और जी। पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना, ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना, तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं एक डायरेक्शन डेटिंग लेंगे। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। आपके मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ, उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है, जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे ले आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई, मेरा क्राइम तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई, उसकी भी तो लेबर लग रही है। अगर मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बारी में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे, बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। देखिए ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे। तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, हाउ दे आर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूटिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, एंड वी हैव मेनी ऑफ सच एविडेंसेस, इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस। एंड जस्ट रिमेंबर 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, एंड द वर्ल्ड इज आस्किंग, पाकिस्तान इज आस्किंग, वेयर इज योर एविडेंस वेयर यू से दैट एनी पाकिस्तानी वाज इन्वॉल्व्ड, वेयर इज दैट लिंकेज, सामने लाए। एंड व्हेन आस्क्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अ फ्यू डेज अगो, दे सेड द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, डिडंट दे से दैट, दे सेड दैट। तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों के अड्डे? 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना, आप लोग गए थे ना, मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था, यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट मुजफ्फराबाद, यू वर देयर एट बहावलपुर, यू वर एवरीवेयर। वॉज देयर एनी ट्रेनिंग कैंप ओवर देयर, वॉज देयर एनी टेररिस्ट बीइंग ट्रेन्ड, उनकी कोई निशानियाँ कोई आपको मिला वहाँ पे? वहाँ तो बच्चे थे वहाँ उस वक्त भी, आप लोग द बर्निंग फ्लैश ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन आप वहाँ फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द, कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद वी न्यू इट,
We said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा, और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें. एंड मोर देन 100 जो सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं. उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है, तो उसका क्या फ़ायदा है. जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर 71 वर टेकन आउट, न्यूट्रलाइज्ड. क्यों उन्होंने जल्दी में भेजा? क्योंकि वो पहलगाम के बाद जो सा है साथ साथ वो दहशतगर्दी वाले प्रेशर था ना अपने एजेंट्स पे, जाओ जाओ पाकिस्तान में बम फाड़ो, कुछ करो. एंड देन ये अगली स्लाइड पे जाएं तो ये आपको दिखाता हूँ. गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9 मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के, जो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे किए. देयर वर 33 टेररिस्ट एक्ट्स दैट वर अटेम्प्टेड ऑल ओवर बलूचिस्तान. ये उसके आप डॉट्स एक दिखा रहे हैं किन किन लोकेशन पे, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे हमने और 22 जोन से हैं देवर एप्रीहेंडेड. Alhamdulillah, your security forces, your intelligence is alive, was very much active, is active, was vigilant, is vigilant, and they took them out. But what does this show? कि जब वो पाकिस्तान में उस वक्त उन्होंने वो ड्रोन भेजे हुए थे, वो प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स के अटैक कर रहे थे, ये वही टाइम है ना, अपने अमृतसर में ही मार रहे थे उस वक्त. तो साथ ही उन्होंने इस फितना अल हिंदुस्तान को, जो कि उनकी प्रॉक्सी है, जो उनका वेरिटेबल आर्म है, इसको भी एक्टिव किया हुआ था. तो दिस इज 9th and 10th. पीछे जाइएगा. तो दिस इज दैट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फितना अल हिंदुस्तान एंड द इंडियन एंड द इंडिया, देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड देयर मिलिट्री. और इसमें एक जो वजह है, वन ऑफ द another contributing factor is the money, क्योंकि पैसा बहुत, पैसा चाहिए ना. एक तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं. ये आप नीचे क्लिप में देखिएगा कि किस तरह उनको जो लेफ्ट ओवर यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, ये M4 की नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बाकी इक्विपमेंट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो सा अवेलेबल है, डॉलरों में वो मिलता है, बड़ी महंगी कीमत में मिलता है. कोई गरीब जो वहाँ के ये जो बलूचिस्तान के हैं लोग, तो वहाँ के गरीब तो नहीं खरीद सकते. कौन इनको प्रोवाइड करके दे रहा है? कौन इनको खरीद के दे रहा है? हिंदुस्तान. ये देखिएगा स्लाइड में, इस जस्ट सी दी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट दीज फितना अल हिंदुस्तान के ये जो दहशतगर्द हैं इनके पास होता क्या है. और इसी तरह ये फितना अल ख्वारिज वाले भी, क्योंकि वो भी इस हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ है. वो गठजोड़ अभी और मजीद वाज़ेह होता जा रहा है जैसे जैसे उनकी स्पेस स्क्वीज हो रही है. देखते जाएं, M16, स्कोप्स, नाइट विजन डिवाइसेस, स्नाइपर राइफल, वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. कौन खरीद के दे रहा है? कौन ये फंडिंग कर रहा है? हिंदुस्तान. जब भी ये पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर से हथियार पकड़े जाते हैं, तो सारे का सारा बड़ी एक्सपेंसिव US मेड इक्विपमेंट होता है मोस्टली, जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो है पीछे छोड़ गए, which has been left behind, and you can find them where in the hands of all these terrorists being funded by Hindustan. Now go to the next slide. This is another aspect that I would like to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists
एंड दिस फितना अल हिंदुस्तान एंड फितना अल ख्वारिज। आपको मैं इसकी सिर्फ चंद मसाले देता हूँ, एंड यू बीइंग इन मीडिया विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट वेरी क्विकली। ये फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ मियांवाली base attack, which is on 4th November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning मियांवाली। ये आपने देखी होगी पहले भी। सो देयर इज द इंफॉर्मेशन प्रॉन्ग। और फिर ऊपर इसका ये क्लिप देखें, जब वो वाकया होता है मियांवाली का, तो हाउ द इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेज अप एंड ग्लोरीफाइज दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म। चलाइएगा जरा। And a news from neighboring Pakistan, which has reported yet another terror attack. Its Mianwali training airbase was attacked by terrorists. Exclusive input coming in from Pakistan, where TJP has attacked PAF Mianwali base. The TJP had entered the base and attacked and have damaged more than 40 fighter planes. Now, Pakistan is reeling under the spate of terror attacks. From Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa and even Punjab, chaos has gripped the country of Pakistan. Pakistan, where Mianwali air base was attacked. Now, आगे आप ये देखें कि 6 अक्टूबर 2024 को हमारे चाइनीज़ दोस्तों के ऊपर कराची में अटैक होता है। उससे पहले इंडिया का सोशल मीडिया के जो उनके रॉ से जुड़े अकाउंट हैं, रॉ एफिलेटेड अकाउंट है, दे स्टार्ट क्लेमिंग, बिकॉज दे आर वही तो वहाँ से प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, वहीं से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहीं से कहा जा रहा है, वहीं से सारी प्लानिंग हो रही है, तो वो पहले पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं बिग डे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और फिर जैसे ही होता है तो देयर मीडिया एंड सोशल मीडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट कि जी हमने चाइनीज को हिट कर दिया कराची में। देन यू सॉ दैट सेम थिंग हैपनिंग ऑन 11th मार्च इन जाफर एक्सप्रेस, कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो। फिर वो कहते हैं द रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। और उसके बाद जब होता है तो देयर होल मीडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस एक्ट ऑफ बार्बरिज्म, दिस हाईजैकिंग ऑफ ट्रेन। पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहाँ पे कोई ईद का दिन हो गया। ये आपको जो नेक्सस है ऑफ द इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग नज़र आ रहा है, सबको दुनिया को नज़र आ रहा है, ही नहीं आ रहा कि ये फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज का हिंदुस्तान से जो गठजोड़ है, फॉर एनी कॉमन सेंस आप सामने रखें, आपको नज़र आ रहा है। आगे जाइएगा। ये खुजदार का वाकया, इसमें भी अभी आप इस लिंकेज को देखिएगा। नेक्स्ट जाए। सुबह ये वाकया होता है एंड हाउ द इंडियन मीडिया, आगे चलिएगा, ये ज़रा देखते जाइएगा कि उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुजदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिएगा। 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM, these are all Indian accounts जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए, BLA के लिए, फितना अल हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं। 8:35, 8:45, they're all reporting धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए। फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन कर जाता है। बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्वेटा कराची हाईवे पर मिलिट्री स्कूल बस पर यह अटैक हुआ। बलूचिस्तान के खुजदार कस्बे के पास ये अटैक हुआ है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जब ये धमाका हुआ उसके बाद पूरे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए और एम्बुलेंसेज जो है वो वहां पर जा रही थी ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और जिस तरीके से हो रहा है ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना का जो इस वक्त मोराल क्या होगा। An explosion has been reported targeting a Pakistan army bus near Khuzda Zero Point in
Balochistan, and we're also getting in reports of mass casualties. And local sources say that a bus that was leaving from the Kent region carrying Pakistani military personnel. सुन रहे हैं आप? ये कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को, जो उनको इस तरह खुशी से रिपोर्ट कर रहा है? और ये अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा, इसके बाद इनके आते हैं तज्जियाकार, इनके आते हैं रिटायर्ड फौजी, इनके आते हैं पॉलिटिशियंस, इनके आते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, and they are thumping their chests. This is the same media, this is the same political elite that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as if they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next चाहिए, one of the proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. फिर ये कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है. किस मुंह से कहते हैं आपका ताल्लुक नहीं है? नीचे पढ़े वो कहते हैं, वी एश्योर इंडिया टू अटैक फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर, कि आप जब एस्केलेशन करेंगे, दैट इफ वी एश्योर इंडिया दैट इफ इट मेक्स द फाइनल डिसीजन टू एलिमिनेट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its, किसका? इंडिया का प्रैक्टिकल एंड मिलिट्री आर्म. 11 मई को ये रॉ इंडिया उनसे ये प्रेस रिलीज करवाता है. क्यों करवाता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो डिटर नहीं हो रही इनसे. वो मिसाइल मारते हैं, वो ड्रोन भेजते हैं, वो हमला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का रिजॉल्व नहीं गिर रहा. उसकी आर्म्ड फोर्सेस जो सी हैं वो सीना खोल के, सीना ठोक के खड़ी हैं. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. तो वो इसको लगाते हैं कि तुम आओ और ये कहो कि जी हम तुम्हारे साथ मिलके होंगे. तो वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये 13 लाख की इंडियन आर्मी हमें कोर्स नहीं कर सकती, डिटर नहीं कर सकती, तो ये जो इनका फितना हिंदुस्तान है, इनकी इन प्रेस रिलीजों से, इन हरकतों से, इन बुजदलों से, इन बुजदलाना कार्रवाइयों से हम क्या डिटर हो जाएंगे? हरगिज नहीं, नेवर एवर. नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा. दिस इज अनदर एंगल ऑफ द टेररिस्ट फेस्ट ऑफ दिस फितना हिंदुस्तान and their master Hindustan. सुनिएगा इनको. Map of Pakistan is going to be redrawn very soon. There will be free Balochistan. Then the Taliban will also claim what is rightly theirs. The Durand line will be rewritten, and all will be left in Pakistan is going to be the state of Punjab in Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh will all be free. 2025 Balochistan, Balochistan, Balochistan. That's what we want. Ye Balochistan. Mange more. These all statements are recent. ये डेट्स आप देखते जाएं. दिस इज पोस्ट पहलगाम. दिस इज ऑन 11th May दैट दिस रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं उनके, वो बलोचिस्तान बलोचिस्तान ही इज हाउलिंग बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड. जो 10 मई को उनके साथ हुआ है
वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितनाउल हिंदुस्तान, और चूंकि फौज के RFC के सामने आते हो तो मारे जाते हो, वो तुम्हें लाशों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जाओ बच्चों की बसों को ही जाके मारो, कुछ करो। बिकॉज दिस इज ऑल नॉट, ये कोई पुरानी नहीं मैं आपको दिखा रहा, ये मैं अब की दिखा रहा हूं। ये वो पहले 6 मई की, अब ये 11 मई को चीख रहा है बलोचिस्तान बलोचिस्तान बैठ के। ये है वो नेक्सेस, ये है वो फितरल हिंदुस्तान। इसलिए हम कहते हैं इनका कोई बलोचियत से, पाकिस्तान से किसी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है माय डियर। इनका ताल्लुक इनके साथ है, ये है इनके मास्टर्स, ये है इनके परपेट्रेटर्स। दिस इज द इवल फेस ऑफ दिस फितनाल हिंदुस्तान। सुनाइए। The BLA is not a ragtag force anymore. They are organized, sophisticated, and relentless. The Baloch Liberation Army, or the BLA, is leading the charge. They have been on an attacking spree. Baloch also added that the state ceremony of the independence government of Balochistan will take place soon. Baloch writer Mir Yar Baloch has claimed Balochistan's independence from Pakistan. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में बलोच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी गई है। Balochis have been more hopeful, have become more hopeful as far as India is concerned. We expect India to help with international human rights community and raise our voice. बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए कि लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया। I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. Our leader, Dr. Allah Nazar, has said, please just give us the 93,000 guns and we are going to show them ourselves. खुला मांग रहा है, 93,000 गन दे दे, 93,000 गन दे। Who is the state sponsored terror here in this region? बताइएगा कौन है, नजर आ रहा है आपको? पूरी दुनिया देख रही है, और ड्रामा क्या करते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। तो ये जो अपनी दहशतगर्दी से छुपने के लिए भी ये ड्रामा किया जाता है, क्योंकि अपने मुल्क में कर रहे हैं जुल्म। दे आर डूइंग कंटिन्यूस ऑपरेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अगेंस्ट द कश्मीरीज, अगेंस्ट द सिख्स, अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। वो जो ऑपरेशन है, वो जो जुल्म है, उसका एक नेचुरल रिएक्शन है, उसका हल नहीं करना। पाकिस्तान में टेररिज्म करनी है, रीजन में टेररिज्म करनी है, और जब उसका हल नहीं करना, वो जो एक इंटरनल इशू है उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कर रहा है। जब कोई उनका एविडेंस मांगे, वी हैव नो एविडेंस, नो वी विल नॉट गिव एविडेंस। उनके मुल्क के अंदर से सवालात आ रहे हैं, वहां से पूछ रहे हैं भाई ये क्या हुआ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर हो गया तो वहां पे मीडिया बंद कर दो, वहां पे सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां पे सहाफियों को पकड़ के जेलों में डाल दो। इज दैट नॉट हैपनिंग ओवर देयर? पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, चाहे एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन क्रिएट हो, कोई पूछे ना कि ये क्यों हुआ है। ये आगे जाइएगा। अब ये सुनिएगा, ये थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि इसकी तारीख भी है ना। ये सुने कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है, इनकी जो होश है, अकल है, वो क्या है, इनकी बातें जरा सुने, सुनते जाए। कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में। आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए। कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया, 1 करोड़ रुपए। आप पैसा दीजिए, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे। ये कौन है जी? ये इनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है। Nobody in India is bothered, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। Is it not terrorism? What else is terrorism? This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, इतने पे लेफ्टिनेंट कर्नल को, इस पे कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को। Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? कोई शक है? Any doubt left? सुनिए आगे।
The Pakistani army must bleed. You must break their spine and put them in a wheelchair. तब जाके पाकिस्तान काबू में आएगा. मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का, it should be right in चाणक्यपुरी में जहाँ पे सारे एम्बेसीज हैं. If they need Indian passport, they should be given Indian passport. भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर immediately और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है आपकी आजादी. ये 16 मई को चंद दिन पहले दिल्ली से चलेगी. अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You have to neutralize terrorists through terrorists only. Why ये can't डिफेंस we do मिनिस्टर it? है We should पुराने. do it. Why my soldier has to do it all the time? बलूचिस्तान के लोगों ने और खुद मोदी साहब नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं. वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का है. उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. आप सुन रहे हैं कौन लोग हैं? ये सर्विंग अफसर है कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया. वो इनके पॉलिटिशियन हैं, इनके वजीर दिफा हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो अभी भी एनएसए हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं. ये दहशतगर्दी कहाँ जाके ख़त्म होती है? ये कहाँ से आ रही है? किधर से ये सोच आ रही है? हु इज़ डायरेक्टिंग इट? सबके वाजे. दिस इज़ दैट अगली फेस of the Hindustan and the fitnal Hindustan, which is visible, which needs to be understood. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितनल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से. मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोई पाकिस्तानियत से, कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. आगे चल. अच्छा, जब ये मार्का हक के अंदर अल्लाह ताला की नुसरत के साथ पाकिस्तान जो सा है दुश्मन के का मुंह जो सा है काला करता है, तो अब समझ नहीं आता. तो फिर वो जो पुरानी वीडियोस रखी होती है ना, जो कि ऐसे कामों के लिए कभी हिजान फैलाना होगा, अपनी दिखानी होगी, तो ये आप देखते हैं कि 19 मई को चंद दिन पहले वो जो फितनल हिंदुस्तान ने जो उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसकी जो वीडियो थी विच वॉज ओनली विद दिस अपना फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के पास, वो पूरी दुनिया में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है अभी, ताकि हौसले बढ़ाए अपने, और अपने फितनल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनके हौसले बढ़ाए कि नहीं जी हमने तो बड़ा कारनामा किया था. कौन दिखा रहा है? हिंदुस्तान का मीडिया. देखिए ज़रा इसको. March 11, 2025. And they launched a swift and intense operation targeting Pakistani security forces on the Jafar Express. Baloch Liberation Army's media wing, Hakal, has now released a video showing their recent hijacking of the Jafar Express, that train in Bolan in Pakistan. और ये है जिसको कर रहे हैं किस तरह आपकी बहादुर फौज ने, आपकी फ़ज़ाइया ने एक जॉइंट ऑपरेशन के ज़रिए किस तरीके से सैकड़ों लोगों को बचाया. द हॉस्टेजेस वर सेट फ्री. ये वो हकीकत है. सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द टेररिज्म. दे आर ट्राइंग टू प्ले इट आउट. वीडियोस बनाओ, उनको चढ़ाओ मीडिया पे, सोशल मीडिया में, सो एज टू शो दैट द स्टेट इज डिसफंक्शनल. सिक्योरिटी सिचुएशन चली गई है. स्टेट तो बड़ी खड़ी थी, स्टेट ने तो उनको मारा, टेररिस्ट को, अपने लोगों को बचाया. आगे आइए. नाउ अनदर एग्जाम्पल वेयर ये इनके जो फितनल हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं विच आर नॉट इन पाकिस्तान, वो किधर अपीयर होते हैं? दे आर कमिंग वेयर? दे आर कमिंग ऑन द इंडियन चैनल्स, और वहाँ बैठ के जो सा दहशतगर्दी का प्रचार कर रहे हैं. सुनिएगा.
बलूच अचीव यही करना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके जो पाकिस्तानी फौज है उनको बावर कर सके कि वो यहाँ पर गैर महफूज है। इसी वजह से इस नौयत के हमलों में इजाफा हुआ है। I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. I really love them. You are our brothers, sisters, real in the interest of the people of India. The expectations are very high that India will somehow, somewhere come and support us politically, diplomatically and militarily. बलूचों ने ये बहुत अच्छे से शुरू किया हुआ है। BLA, BLF और दूसरे तंजीमों ने और खासकर BLF। The taboos being there, the coffins being sent by the Pakistani military and Quetta railway area being cordoned off. Probably Beijing told them sacrifice the soldiers and go and carry out a military operation against the hostages. Baloch have never accepted Pakistani rule. जी आगे चलिए. The point you can understand is that how they work hands in glove. The Indian state controlled media, क्योंकि अब तो आपको सब नजर आ गया ना कि आज़ाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहाँ का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आज़ादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आज़ाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना आपने भी। ये बिठाया जाता है, ये मीडिया वहाँ पर, इनको बिठाया जाता है वहाँ पर। अब ये देखिएगा अगली में कि दुनिया के अंदर भी, वेस्ट के अंदर भी इस बारे में लोग क्या कहते हैं, सुनिएगा। दिस इज द एक्स डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। India for some time has always used Afghanistan as a second front, and India has over the years financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions. What the Indians and the Taliban are doing is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiris in Pakistan. So they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiris. They've been killing a bunch of Sikhs. They say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. I don't think there's a question of India engaging in subconventional operations. In fact, I've been public saying that India should do more of this and less of what we just saw. Christian Fair is saying this just few days ago. Less than just we saw. ये जो पहलगाम के बाद आपने जो हमाकत की है 6-7 की, ये काम ना करें, वो काम करें जो आप कर रहे थे सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस। She knows कि they are in this. What is sub conventional operation? Terrorism. So the West knows, the world knows. They fully understand what India is doing. क्या पैसे लगा रहा है, किस तरह फंडिंग कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। Next slide. Just a few pictures. Some you have seen, some you may not have. ये जो साहब हैं, ये हैं असलम अच्छू. He is a well-known terrorist. किधर है ये? इंडिया में उनके मैक्स हॉस्पिटल है. He is getting treatment over there. नीचे जो सा है एक फितना हिंदुस्तान का आगे जो उसका BLA, उसका टेररिस्ट है बशीर ज़ेब. पासपोर्ट किसने दिया है? इंडिया ने उसको, अफगानिस्तान का. ऊपर अच्छू को किसने दिया है? अफगानिस्तान का पासपोर्ट इंडिया ने. ये आप देख रहे हैं डॉक्टर अला नज़र, अनदर टेररिस्ट, और उसका इंडिया में वीज़ा और एंट्री कहाँ गया है? हिंदुस्तान. नेक्स्ट जाइएगा. ये हैं फितनाल हिंदुस्तान के कमांडर, और ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान में. इनका नाम है खलील चेयरमैन. और ये साथ इस तस्वीर में आपको ही इज़ गेटिंग ट्रीटमेंट इन अपोलो हॉस्पिटल इन इंडिया. नेक्स्ट टू दैट यू कैन सी, क्योंकि ये फितना हिंदुस्तानी फितना ख्वारिज उसी तरह गठजोड़, उनके कमांडर मलिक फरीदून, यू कैन सी दैट. और ही इज़ ऑल्सो गेटिंग ट्रीटमेंट इन इंडियन प्रीमियस हॉस्पिटल. तो जब यहाँ से कोई ज़ख्मी होते हैं, गोली लगती है, तो फिर इंडिया अपने इन एसेट्स को रिकवर करता है, इनको हिंदुस्तान लेकर जाता है, उनका इलाज करता है. कौन कर रहा है? उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज. जी आगे जाइएगा. नाउ
some of these terrorists, their leaders, after they have surrendered, उनके बहुत से जो हमारे जो बलोच हैं, जब वो हिंदुस्तान का ये ईवल चेहरा देखते हैं और उनको समझ आती है कि इस पूरी ये जो हमें बेवकूफ़ बना के रियासत पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो खड़ा किया, इसके पीछे तो हिंदुस्तान है, तो सम ब्रेव वंस दे स्टैंड अप एंड दे सरेंडर। कहते हैं हम हिंदुस्तान की जंग लड़ने नहीं आए थे, हम हिंदुस्तान के अहलाकार नहीं हैं, हमारे तो बाप दादा ने हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की थी, बलूचिस्तान को और हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो देन दे कम एंड दे टेल दैट हाउ इंडियंस वर इन्वॉल्व। ये भी बिल्कुल रिसेंट की है, लिसन टू देम। दिस इज सरफराज बंगलजई, सुनिए। ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश वशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। कुछ महसूस ताकत बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है। इंडिया की नज़रें तो हैं इस पर, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। उधर जाके मैंने देखा, मैंने वहाँ जाके मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं देखी। वहाँ पे जाके ऐसे सख्त हालात थे। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैंने खुद देखे, ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते, परगला के लेके जाते। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। This is another yet very dark aspect of this fitna on Hindustan terrorism. Exploiting, blackmailing young girls. This is Adila Baloch, who was exploited, blackmailed by this fitna al Hindustan to be used as a suicide bomber. And then they project it, कि देखिए these young girls are blasting themselves, how deep, how ingrained this ideology is. No, these are all exploited girls, blackmailed girls. शारी बलोच, उसकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी, बाल बलोच, उसकी भी आपने सुनी होगी। All exploited, blackmailed. कौन करवा रहा है? हिंदुस्तान। किसके साथ? बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ। आगे जाइए। Now here is this Kharji, this so called मुफ्ती। क्या कह रहा है? ये चंद दिन पहले आपने शायद सुना हो। He is saying in the current era cooperation with the disbelievers during the weakness of the Islamic Emirate is completely permissible. इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि ख़वारिज हैं जो मुशरकीन को छोड़ेंगे और मुसलमानों का कत्ताल करेंगे। यक्तलूना अहलुल इस्लाम व यदऊना अहलुल ओसान। यही बताया था ना कि ये वो लोग हैं जो बुत परस्तों को छोड़ेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे। किसने फरमाया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारी जाने कुर्बान हो, बता चुके थे। ये आपके सामने बैठे, अब खुल के सामने आ रहे हैं हिंदुस्तान और उसके फितने, और खुल कर कह रहे हैं वो निशानियां जिनका बताया गया था ख्वारिजीन के बारे में, एक एक करके सामने आ रही या नहीं आ रही? आगे जाइएगा।
ये मैं आपके सामने आखिर में कुछ ये अकाउंट्स रखना चाह रहा हूँ जो कि इंडिया ने, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बड़ी एक देयर इज अ फीलिंग दैट ऑन सोशल मीडिया दिस फितना अल हिंदुस्तान and these so-called organizations, they have lot of sympathy and lot of presence and lot of support. Now what's behind that are thousands and thousands of accounts that are operated by the Indian intelligence agencies from inside India also and outside India also. This I am going to give you a rundown of few accounts that have just recently popped up in thousands, being run by the Indian intelligence agencies to portray on social media, on X, on Facebook, that there is a large swell of support for this fitna al Hindustan and its perverted ideology. आप इनके नाम भी देख लें, ये मीर यार बलोच, इसको तो अभी किसी इंडियन एनजीओ ने बड़ा रिकग्नाइज किया कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने हमारी बड़ी सपोर्ट की है, ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया. संजय यादव, कर्नल एजे, आगे चलते जाएं, नाम देखते जाएं इन सब के, विवेक आनंद, और इनकी आप थोड़ी ऑसेंट वो करें आप इनकी क्या कहते हैं आईपी एड्रेसेस इंडिया से, माहीन बलोच, आनंद सिंह, विवेक मिश्रा, लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान फैक्ट्स, एक ने गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के नाम का अकाउंट बनाया हुआ है, फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट, यूनाइटेड हिंदू. व्हाट्स हैपनिंग दिस? This is that fake perception that is created, that on X, on social media, everybody is talking, event हो गया, देखें जी कितने हजारों अकाउंट है. कौन चला रहा है? वही जो डिसइंफो लैब चला रहे थे, जो कि अभी एक बड़ा डिस्क्रेडिटेड किस्म का नैरेटिव जो उनसे अपने मीडिया, सोशल मीडिया में चलाना चाह रहे हैं, जो उनके साथ 6-7 को हुआ और 10 को हुआ उसके ऊपर. दिस इज ऑल दैट फॉल्स फेक प्रोपेगेंडा. अब आप आगे देखें, ये जो पूरा, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट दैट इन क्वेश्चन आंसर सेशन. आई जस्ट गिव यू वन एस्पेक्ट. ये जो पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी सिर्फ जो ग्राउंड पे टेररिज्म है उसके मैं आपके फिगर रख देता हूँ. These are the figures of the counter-terrorism efforts that are going on since January 2024. Overall, Pakistan में the terror incidents that have happened are 4,664. In Balochistan, that number was 1,612. Pakistan security forces, intelligence, law enforcement, police, all, they did more than 93,000 operations during that period. Out of this, more than 52,887 counter-terrorism operations were conducted, have been conducted in Balochistan only. And if you see the comparison of 2024 and 25, you will see very interesting conclusion. 2024 में हमने टोटल 1018 terrorists we killed. Out of that 233 were in Balochistan. अभी पांचवा महीना चल रहा है. ऐसे ही है ना. आपने अभी तक 747 वी हैव किल्ड एंड इन बलूचिस्तान ओनली वी हैव किल्ड 203. तो जैसे जैसे अगर वो अपनी उनको पुश कर रहे हैं कि आप करें, तो आपकी स्टेट जो सी है उसी तरह उनको लंबा डाल रही है. और चूंकि उनको लंबा डाल रही है तो वो जाते हैं और फिर जाते हैं मासूम लोगों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, ताकि नेशन का रिजॉल्व गिरे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं आपको बताता, ये सुने नेशन का रिजॉल्व. जस्ट लिसन टू द रिजॉल्व ऑफ दिस नेशन. ये है वो बाप जिसने अपनी 2 बच्चियों को शहीद हुआ है कब्र में डाला है. सुने इसको, जस्ट लिसन टू हिम. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Till the time this nation has such fathers who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve
This Hindustan, this fitna al Hindustan, this fitna al Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. Now we'll take your questions. थैंक यू वेरी मच सर। राशिदा सियाल आज़ाद डिजिटल से। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये आपने सारी एक डिटेल ब्रीफिंग दी, अब मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो एक स्टेट के लेवल पे एक आप नहीं समझते कि हमें एक सख्त पॉलिसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है? नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है मगर उसके होते हुए भी ये सारी सूरत हाल है, तो अब इस फितने को कुचलने के लिए क्या पॉलिसी होगी? सेकेंडली, जो महरंग बलोच जैसे लोग मिसिंग पर्सनस का राग इलापते हैं और उनके साथ हमदर्दी करते हैं जो टेररिस्ट हैं, लेकिन जो बच्चे शहीद होते हैं और जो लोग शहीद होते हैं उसके हवाले से वो मुकम्मल खामोश होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? थैंक यू। देखिए, पहली सर योर परमिशन प्लीज, आई वुड से दैट वन लाइनर पॉलिसी इज दैट द नेशन, this Ahni wall, this Bunyano Masroor, we fought this in a very gallantry and exemplary manner against the Indian military aggression that happened on the night of 6th and 7th, and then you saw it again on the morning of 10th. This steel wall needs to be in that unison turned against these Indian proxies of terrorism. That is what is required, and that is what the state intends to do, and that is what state is doing. Because once you talk about it and you see that incidents, तो आप कहते हैं कि state, because we need to understand certain facts. The fact is that why Indians felt the need to do this military escalation. One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan, over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together. और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ स्पेस को स्क्वीज़ करना शुरू किया है। उसकी आपको बहुत सी निशानियां नज़र आती हैं। मैंने आपको उसकी एक इंडिकेशन दिखाई कि इस साल अभी 5वां महीना चल रहा है, हम 203 से ज़्यादा सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्द मार चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 250 के करीब मारे थे पूरे साल में। तो आपको मिलिट्री का एक एस्पेक्ट नज़र आया ऑपरेशंस का। जो उनका बहुत बड़े सहूलतकार है, इलीगल अफगानीज दे आर बीइंग पुश्ड आउट। जो नेक्सस है टेरर क्राइम का नेक्सस, उसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि एक्शंस हो रहे हैं। अफगान बलूचिस्तान में देखें तो इलीगल ट्रेड्स के बहुत से रस्तों को बंद किया जा रहा है, जो उनकी फंडिंग जहाँ से आती है। तो आप जब इसके अगेंस्ट स्पेस क्वीज कर रहे थे और बलूचिस्तान में जो उनका नैरेटिव था, आपने जिनका नाम लिया बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल वालों का, उनके अगेंस्ट भी स्टेट ने एक्ट किया, उनकी भी स्पेस क्वीज हुई। यू हैव लेटली सीन कि BYC वहाँ पे जब निकलती है तो 10, 20, 25 बंदे भी नहीं साथ निकलते उनके साथ, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। द बलूचिस्तान के लोगों ने, ये जो आप देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान के लोग नहीं देख रहे कि बच्चों को मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। तो ये जो मिलिट्री एस्केलेशन थी बजाते खुद, दिस वॉज ए डिमांड, दिस वॉज ए नेसेसिटी दैट दे थॉट दैट इज नीडेड सो एज टू क्रिएट स्पेस फॉर देयर प्रॉक्सी टेररिस्ट। लेकिन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, through a partial application of its conventional forces, without pulling a single soldier from this counter-terrorism force, a large portion of the armed forces and security apparatus is employed in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa against the terrorist proxies. Employed है या नहीं है? क्या आपकी रियासत ने वहाँ से एक सोल्जर, एक सिपाही भी निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता था कि ये इन यूनिसॉन ऑपरेट कर रहे हैं। वो आपने देखा कि 10 को 9 को किस तरह 33 जगहों पर उन्होंने हमला किया। तो एट द सेम टाइम, while we were rubbing their nose on the east, in the air and on ground, along the line of control and working boundary, we were taking them on in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa। किया या नहीं किया? 25 की रात को तश्कील 71 बंदे उनके ढेर किए या नहीं किए? 9 और 10 को उनको रोका या नहीं रोका? उनको 5 उनके मारे या नहीं मारे? 22 उनके पकड़े? बिल्कुल पकड़े ना। So they are in a state of frustration, they are in a desperate situation। उस desperate situation में ही आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया पे आके किस तरह हाउलिंग कर रहे हैं। उनके आपको स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट नजर आ रहे हैं ना, मैंने आपको अभी दिखाया ना किस तरह। इवन आफ्टर 10th of May, too many times they have come and say बलोचिस्तान बलोचिस्तान बलोचिस्तान, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये रियासत तो इकट्ठी हो रही है, या अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे।
क्योंकि हमें क्लियर है, आपको क्लियर है कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं, ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। तो वंस दे नो इट तो देन दे गेट वरीड। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान है उनकी एक और परेशानी भी है। वो क्या? वो ये है कि दे अंडरस्टैंड दैट बलूचिस्तान इज राइट नाउ एट द टेक ऑफ सोशो इकोनॉमिकली। आप देखें रिकॉर्डिक इट्स गेटिंग ऑपरेशनल, इज इट नॉट? मल्टीपल international partners, very credible partners, they are very much interested, they are coming, they are there in the Chaghi mineral district. Blue economy of Balochistan, great plans are there, great MOUs, great things are happening over there. Green Pakistan initiative, lot of funds, lot of money has gone in, lot of land has been cultivated, is being cultivated. Kachhi Canal, उसकी वो टेल एंड का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है, उसकी रिहेबिलिटेशन हुई है। लाखों एकड़ ज़मीन जो सी है वहाँ पे जो सा है दैट इज़ उसको जो सा है उसको काबिल काश बना दिया गया है। हो रहा है या नहीं आ रहा? गवादर पोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, 73,000 बलोच स्टूडेंट्स इस वक्त दे आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर तालीम हासिल कर रहे हैं। There are 13 cadet colleges over there. There are 321 technical institutes over there. There are thousands of colleges over there. वो जो 375 किलोमीटर का रोड नेटवर्क जहाँ से बलूचिस्तान ने 47 से सफ़र शुरू किया था वो 25,000 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है। वहाँ पे डायलिसिस सेंटर्स हैं पूरे बलूचिस्तान में, वहाँ पे अस्पताल है। तो वो ये सोशो इकोनॉमिक तरक्की को देखते हैं। वो बलूचिस्तान में उनके ये जो उनके ईवल दहशतगर्द हैं, इनके मुकाबले में अब्दुल समद यार जन जैसे लड़के खड़े हैं जो स्पेस साइंटिस्ट है। इसके मुकाबले में इस ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो प्रेसिडेंट है इंग्लैंड में, वो कौन है? वो आपका बलोच भाई है या नहीं है? वहाँ पे आयशा जहरी जैसी बच्चियाँ खड़ी हैं जो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है अपने ज़िलों में, अपनी जगहों पे। वहाँ पे शाहजेब रिंद आके खड़ा है या नहीं खड़ा, जो बलूचिस्तान का असल चेहरा है। तो उनकी परेशानी बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए। फिर वो ये देखते हैं कि ये फौज जो सी है इस दहशतगर्दी को, इसका मुकाबला करते हुए साथ कितने फौज के यूनिटें, आपकी ब्रिगेडें, आपकी जो डिवीजन्स हैं, FC है, कितने सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। छोटे छोटे से ले के गवादर के मछेरों को फिशिंग नेट दे के, लॉन्चें देने से, वहाँ से ले के छोटे छोटे अस्पतालों से, डिस्पेंसरी से। The government of Balochistan, the Prime Minister of Pakistan, they are so much focused on Balochistan. How many times the Prime Minister with his whole cabinet have been there? कभी हुआ है तारीख में आपने देखा है? वो जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, उनके वजीर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जाती है हमारी, funds are being made available and the revenue that is going to come is coming from the minerals. वो जो रेवेन्यूज है आप देखें उन माइनिंग प्रोजेक्ट्स को, आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त, कितना बेहतरीन शेयर है आपकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। सो इकोनॉमिकली दी बलूचिस्तान की अपलिफ्ट आ रही है, सोशो इकोनॉमिकली आ रही है, तो उनको परेशानी तो होनी है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज ए रैशनल प्लेयर। ये जो आप देख रहे हैं कि उधर पहलगाम में एक वाक़या होता है विच इज़ ड्यू टू देयर इंटरनल ऑपरेशन, उनके अपने जुल्म की वजह से। The response is totally illogical, totally irrational, unilateral. पाकिस्तान बलूचिस्तान का दहशतगर्दी का मसला रैशनली अप्रोच कर रहा है। कैसे? Because we are resolving it by the unison synergetic application of all elements of national power. Where military is one part, where we are doing we have done more than 93,000 operations all over Pakistan in less than 1.5 years. कर रहे हैं ना? But this is one part. We are killing terrorists. The other part is that socio-economic development. The other part is the diplomacy. The other part is this, that we and you are sitting over here and we are telling our people, we are telling the international community that this has got nothing to do with Balochistan. This is state-sponsored terrorism by India. And we, the rational, responsible state, this is how it acts.
rather than कि आज रात को उठे और जाके इंडिया में जाके सिविल आबादियों पे उनके मंदिरों पे जाके हम हमला करना शुरू कर दें, because that is not going to resolve the problem. Yes, we are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, that this is the epicenter of destabilization in this region, India, with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before, and in multiple countries of this region they have done it. I would not name it now. उसके सबूत हैं, दुनिया जानती है. सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि एपीएस पेशावर का हमला हुआ, कौम इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ एक बाकायदा उनको कुचलने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया। अब एक दफ़ा फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को उसी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए निशाना बनाया है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए कोई हुकूमती सतह पर पॉलिसी तरतीब दी जाए? और इसके साथ ही महरंग बलोच जब इस्लामाबाद में आकर बैठती है और उस जैसे और किरदारों को इस्लामाबाद में मौजूद बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, तो अब जब ये सारे किरदार एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं सबूतों के साथ, तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। थैंक यू। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। इफ़ यू लुक एट द फिगर्स, इवन जो टेररिज्म के फिगर्स थे, जब पेशावर एपीएस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ। टेररिज्म के फिगर्स अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो कंसिडरेबली नीचे आ गए। विद 2018, 19, 17 सारे नीचे फिगर्स थे। नाउ देव गॉन अप अगेन एंड आई एग्री विद यू, समथिंग नीड्स टू बी डन एंड आई शो यू कि स्टेट इसमें कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज़ उसको हेड कर रही हैं एंड उसको रीइन्विगरेट कर रहे हैं ताकि all domains, including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain और political domain, जितनी भी domains हैं, इनके ऊपर भी बड़ा regularly काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इस पे मीटिंग्स लेते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ। फेडरल मिनिस्टर्स इसको हेड कर रहे हैं, वो बड़ी दे टेकिंग मीटिंग्स वो इवन मोर देन वंस अ मंथ। इसी में once we go for something like these ज़रब-ए-अज़ब, we have to be prepared. So उसकी तैयारी में every effort is being made ताकि हर जो फैसेट है नेशनल एक्शन प्लान का जब इन प्लेस हो तो it automatically brings in the piece that we need, and obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to ज़रब-ए-अज़ब, but that's at a later stage. इस वक्त continuous operations तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं जिसके आप साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग मच मोर देन व्हाट वुड हैव नॉर्मली बीन डन। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड, डे एंड नाइट लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको रिजल्ट्स भी उन्होंने दिखाए हैं। एंड एज वी स्पीक इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, that the elements of national power जिसकी आपने की नेशनल एक्शन प्लान की, जिससे सेक्रेटरी साहब ने बात की, दिस इज कम्प्लीटली इन प्लेस। उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा होती है, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम दिस प्लेस दैट ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपके 13 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के, रिवाइज नेशनल प्लान में, उसमें जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्टिंग एज टेररिज्म उस पर काम हो रहा है, बाकी में हम खुद ये कहते हैं कमी है। हर काम में देयर इज ए पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दैट इज हैपनिंग एंड वी कैन go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. आपने ये वर्ड सुने होंगे, because हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को उसमें तकलीफ हो, and this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence based operations which are becoming more effective day by day. और इसके अंदर आपका मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज़ टू डिसमिनेट विद लॉजिक, विद फैक्ट्स कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है, बिकॉज दे वॉन्ट to destabilize the region, they want to
टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है, एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन. सो डोंट वरी, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में ये भी एक, यानी कि देयर वर सम क्वार्टर्स हु यूज्ड टू से कि जी हिंदुस्तान की इकॉनमी इधर चली गई है, हिंदुस्तान की मिलिट्री इधर चली गई है, तो हिंदुस्तान की ये हो गई है. तो आपकी अफवाज ने उनको जवाब दिया या नहीं दिया? तो आप और हम मिलके क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? दिस नो, और हमने संभालना है, इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है. वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर टेकिंग देम ऑन, एब्सोल्युटली नो डाउट. एंड यू एज मीडिया नीड टू अनमास्क द रियल फेस. वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमास्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो के इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं. दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है. वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं. जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना. हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें? ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस है. तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म. तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे एनी नेशन डील्स विद द प्रॉक्सीज. देयर इज नो डाउट, देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन दैट. लाइक जी एयरवे TV से. सर, जैसे आपने काफ़ी तफसील से बताया जिस अंदाज में बलोचों का जो कार्रवाइयाँ इंडियन प्रॉक्सीज कर रही हैं और नफ़रत और की फ़िज़ा बनाई जा रही है, कम्युनिटीज़ के दरमियान रिफ्ट पैदा की जा रही है, एक और साथ साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोपेगेंडा बहुत वसी पैमाने पर फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान ने हमला किया, सिखों की जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात हैं उसको निशाना बनाया गया. इस पर आपकी टेक चाहिए कि क्या ये भी उसी नौइयत की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश है? देखिए, ये जो मार्का हक का वाक़या हुआ है, इसके अंदर we can see a very sinister design which involves the Sikh community, जिनको जो सा इंडिया जो सा है somehow for what reason they want to involve it in somehow, in किसी वजह से. उसकी कुछ एविडेंस फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ. इंडिया ने अपना जो अमृतसर का इलाका है, जनरल एरिया, वहाँ पे प्रोजेक्टाइल्स फायर किए. हमने आपको उनकी ट्रेजेक्टरीज भी दिखाई, एंड दैट इज़ बेसिकली ए सिख मेजॉरिटी एरिया. ननकाना साहब जो है, विच इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल और काबिल एहतराम जगह है सिख कम्युनिटी की इन पाकिस्तान के पंजाब में, उसके ऊपर जो ड्रोन्स भेजे, देयर वाज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट मेड टू अटैक दैट होली प्लेस, जो कि पाकिस्तान ने फाइल की. अब ये जो गोल्डन टेम्पल का, जैसे आपने कहा, ये वी हैव ऑल्सो फॉलोड इट आपके इंडियन मीडिया पे. इनफैक्ट उनके जो उनसे मिलिट्री ऑफिशियल, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आके ये बातचीत की. देखिए, फैक्ट्स अगेन बड़े क्लियर हैं. पाकिस्तान का जो अवाम है, स्पेशली जो पाकिस्तान के पंजाब है, इसकी और जो सिख कम्युनिटी है, इनकी एक बड़ी क्लोज कल्चरल एफिनिटी है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, कस्टम्स में हो. एक प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, जो आप देखते हैं जब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं तो कितनी मोहब्बत से पाकिस्तान के अवाम जो है उनको वेलकम करते हैं, गले लगाते हैं. आप उसे फील नहीं करते हैं? एक प्यार, मोहब्बत आपको नज़र आती है. सिख मज़हब की बड़ी जो अहम मुक़द्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में पंजा साहब है, ननकाना साहब है, करतारपुर साहब है और दीगर हैं. हम ना सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं, हम उनका ख्याल करते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते? तो अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे किसी जगह पे हमला करना है तो वाई ऑन वन प्लेस, वाई वुड पाकिस्तान डू दैट? कोई इसकी लॉजिक है, कोई अकल है? इसलिए कहते हैं नैरेटिव, जब आप झूठ बनाते हैं तो झूठ बनाते हैं, कुछ सोच तो लिया करें ना, बात क्या करने लगे. हमारा एक ताल्लुक है सिखों के साथ, मैंने बताया बड़ा गहरा ताल्लुक है, कल्चरल ताल्लुक है,
एक दूसरे के साथ एक उनसियत है। हम तो उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत करते हैं, ख्याल करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। आज करतारपुर कॉरिडोर जोन सा है, पाकिस्तान ने तो खुला किया हुआ है। कौन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोन सा है, विच इज़ ए फंडामेंटल राइट, उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? इंडिया ने नहीं आने दे रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देयर इज सम सिनिस्टर डिज़ाइन, जो आई डोंट नो कि कौन से वो अक्लमंद हैं जो ये कहते हैं। एंड देन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि अपने सर्विंग जनरल ऑफिसर्स को ला के ये झूठ बुलवाते हैं, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. आपके सामने आपकी फौज के अफसरान आते हैं, आप हमारे साथ खुल के हम बात करते हैं, क्विज करते हैं, तो सवाल करते हैं। क्या आपने हमें कभी सुना कि आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, अभी टेररिज्म की बात में, कि आपको झूठ की बात करें? वी आर अकाउंटेबल टू यू, वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। We will give you our arguments, our facts, our perspective. क्या कभी आपने सुना कि आपकी फौज आके इस तरह खुला झूठ, नंगा झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि ये काम हो गया? But that happens once the politicization of a military, और वहां पे आप देख रहे हैं उनकी सेफनाइजेशन जिस तरह हो रही है कि दैट ऑफिसर जो कह रहा है उसे पता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम आके जो सा बयान करो कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कौन सा हमला कर दिया? जिस तरह 9-10 को वहाँ पे चल रहा था, 8-9 को चल रहा था कि पाकिस्तान ने 15 जगह पे हमला कर दिया है। उससे मैंने कहा था जब हमला करेंगे तो हमें इंडियन मीडिया की ज़रूरत नहीं, हम हमला करेंगे तो आपको खुद ही आवाज़ आ जाएगी। पाकिस्तान का तो जो मज़हब है, हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो इक़दार हैं, हमारे कल्चर है, हम तो कभी किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करते। हम किसी की मजहबी मुकद्दस मकामात पे क्यों हमला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वी आर नॉट दी वन। जिस तरह 6 और 7 को उन्होंने मसाजिद पे हमला किया, हम तो कभी नहीं करते। दिस डजंट गो विद इस्लाम, दिस डजंट गो विद आवर पाकिस्तानी एथोस, नॉट एट ऑल माय ब्रदर। सर इश्तियाक गुंदल, रोज़ न्यूज़ से कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने गुजरात के अंदर एक एयरबेस का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि ऑपरेशन संदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जो कुछ हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर जाहिरियत कर सकता है, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पूरी फिल्म दिखा दी है इसलिए अब ऐसी हमाकत नहीं करेंगे? शुक्रिया। वो ये कि सर अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि जी हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, ख़ासतौर पर उसने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए पॉइंट ये है कि दे डिसाइडेड, द इंडियन डिसाइडेड टू यूज़ मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. ये फैक्ट है या नहीं है? ये हुआ ना। उसका नतीजा जो उनसे अपनी टाइम एंड प्लेस चूजिंग पे आए थे। वो जो इतने सालों से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं $80 अरब का, वो भी इनके बैक एंड पे था। उनके जहन में अपनी एक पोजीशनिंग भी थी कि जी हम दुनिया में इस पोजीशन पे खड़े हैं, पाकिस्तान इधर खड़ा है। उनके जहन में कुछ और एजम्पशंस भी थी कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर शायद कोई तनाव है। उसके अंदर उनका अपना इन्हिसार था अपनी इन प्रॉक्सीज़ के ऊपर भी, आपको नज़र आ रहा है, जो कि कह रहे हैं कि जी हम खड़े होंगे, फितना हिंदुस्तान, फितना खबर। उन्होंने बहुत सी एजम्पशंस की थी ना। आए, रिजल्ट देख लिया, दोबारा शॉक करना है, दोबारा आ जाए। हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वॉन्ट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। दूसरी बात ये है कि देखिए सीज फायर है। सीज फायर का मतलब है कि फायर रुक गया। डज इट मीन दैट दी पाकिस्तान के जो इंडिया के जो बेसिक तनाज़े हैं, जो रूट कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स हैं वो हल हुई हैं? वो तो नहीं हल हुई। उसमें जो बहुत से मसाइल हैं अगर देखा जाए, देयर आर 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। वन इज़ द इंडियन पोलिटिकल माइंडसेट ऑफ द प्रेजेंट पोलिटिकल एलीट, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, विच इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, गॉड नोज फ्रॉम वेयर इट कम्स, स्ट्रेटजिक एरोगेंस, जिस तरह के वो बयान देते हैं उसकी वजह से, विच आर मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स
एंड डोमेस्टिक ऑडियंस, और उसके अंदर उनके जहन में ये है कि हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम डिसरिगार्ड है तमाम चीज़ों का, जिसको दुनिया भी देख रही है, समझ रही है कि क्या कहे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जबकि हम बार बार ये कहते हैं कि ये हमाकत ना करना, ये बेवकूफ़ी ना करना, हमने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहते हैं। सेकंड इशू आपका जो बुनियादी है वो आपकी है कश्मीर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। और कश्मीर जो सा है एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, चाइना का भी एक क्लेम है उस पर, और बेसिकली तो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व एज पर द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एज पर द यूएनएससी रेजोल्यूशन। उसको वो इंटरनलाइज किया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने 7 लाख ज़्यादा फौज डाली हुई है, सिक्योरिटी के दायरे डाले हुए हैं, लोगों को प्रेस करते हैं, जुल्म करते हैं। पहलगाम के बाद ही आप देख लें, हज़ारों की तादाद में पकड़ धकड़ की गई है, लोग पता नहीं गायब कर दिए हैं, किधर हैं। डजन्स एंड डजन्स ऑफ हाउसेज हैव बीन बुलडोज्ड एंड बुलडोज किया है, ब्लास्ट किया है। इस तरीके से तो कश्मीर को देख लें आप। अभी देखें, ये भाई ने जो सवाल किया कि जिस तरह ये सिख्स के ऊपर, एक कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करते हैं, उनकी ऑपरेशन करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, दलित्स पे करते हैं, लोअर कास्ट पे, और हैं हमारे उधर मिनॉरिटीज़ हैं बहुत सी करते हैं, वो इनके इंटरनल प्रॉब्लम है। उसकी एक बढ़ती, उसकी उस ऑपरेशन का इलाज इंटरनली करना है, उसको हल करना नहीं है। उसका एक नेचुरल रिएक्शन आता है, जब जुल्म होगा जुल्म का जवाब तो आएगा, उसके ऊपर जो सा है उसका हल करना नहीं है, और वो पाकिस्तान के साथ जोड़ ली, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब जब ये तमाम मामलात हैं, और तीसरा आपका प्रॉब्लम है जो आपके सामने, जिस पर हमने डिटेल में बात की कि इंडिया ने जो सा है दहशतगर्दी को एज ए टूल अगेंस्ट पाकिस्तान अप्लाई करता है। अब आप दहशतगर्दी करा रहे हैं एक मुल्क में, फितना अल हिंदुस्तान के ज़रिए, फितना अल खारिज के ज़रिए, तमाम सबूत आपके सामने, और भी बहुत सबूत हैं, दुनिया देख रही है। तो इसके साथ जो सा है आपके क्या बेसिक कॉन्फ्लिक्ट तय हो सकते हैं, मसला हल हो सकता है। अब इस अमन को जो सा है पाकिस्तान ने एक बड़े रैशनल रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तौर पे मेंटेन किया हुआ है, थ्रू द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, थ्रू द कैपेबिलिटीज ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस, एंड बाय वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि हम आपके आगे नहीं झुकने वाले, कम व्हाट में। सो यू कैन नॉट चूज योर नेबर, इंडिया इज आवर नेबर, तो लेट्स सी दैट वेदर इट कम्स and realizes the ground reality or not. So that's what is at stake right now. अहमद मंसूर 24 न्यूज़। जनरल साहब, हिंदुस्तान हर महाज पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। बलूचिस्तान की पूरी आपने इस वक्त की सूरत हाल बताई। इसी तरह जो वाटर क्राइसिस है और वाटर इशू है ख़ास तौर पे, उसको भारत में अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। दोबारा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है, धमकियां हैं हर सतह पे। उनका सोशल मीडिया देख लें, मीडिया देख लें, उनकी लीडरशिप देख लें, और वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पे आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान का पानी है उसका रुख मोड़ने के लिए वो नई नहरें हैं, उनका वो काम कर रहा है, उसकी कोई डिज़ाइनिंग, कोई वर्क, उसका प्लान चल रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं कोई हाइड्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ए सिंपल प्लेन सोल्जर। आई नो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ गिवन ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑन दिस, एंड वी फॉलो द ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट एज पर द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। दरअसल सरदार हमीद, न्यूज़ 1 टेलीविज़न से। मेरा सर सवाल ये है कि कलभूषण से लेके अब तक इतनी ठोस एविडेंस सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर चंद उनके आलाकार जो हैं वो पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, और बिलखुसूस दिल दहला देने वाले जो इंसिडेंट जो बस वाला है, तो इसको देख के यकीनन ये अब ये हिकमत अमली क्या होगी सर, और क्या इनको कुचलने के लिए कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैबर पीके में, या जहाँ जहाँ इनके टाउट्स हैं राह के, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज़
experience of decades of this counter-terrorism operation. And over a period, we have evolved this operational technique where we do intelligence-based operations. Because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं. हमारी जो पहली रियासत की जिम्मेदारी है वो अपने अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोज़गार, उनकी अमन है. So these intelligence-based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. आपके सामने मैंने फिगर्स रखे. हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरेवर दे हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं. एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे. तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू. पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे को रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन हम कर रहे हैं मेरे भाई. ऑपरेशन हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबारी ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है. दूसरी बात यह है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट. दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले 1 साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं. बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहाँ जाके टारगेट कर रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं. नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मजीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी. और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली comprehend and tell the world as well as the पाकिस्तानी population कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई. ये कभी कामयाब नहीं हो सकते. बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का. 1.5 करोड़ की आबादी, इतनी आबादी है ना. उसमें 40% बलोच हैं, उसमें बरावी भी हैं. उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज़्यादा वहाँ पख्तून है, हज़ारा हैं, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं. और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं उससे ज़्यादा बलोच तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में है. कराची में बलोच कॉलोनी है. आई थिंक कराची में परहास ज़्यादा बलोच हूँ शायद कोयटा से. पंजाब में है, सिंध में है. इनकी मुआशरत और मईशत में रचे बसे, आपस में शादियाँ हो चुकी हैं. ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते. उन्हें भी पता है, इनके इन पैरोकारों को ही पता है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है. बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है. आपकी फौज देख लें, शायद ही बलूचिस्तान का कोई किली हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो जहाँ पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने, बलूचिस्तान के सिपाही ने, बलूचिस्तान के लड़के ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो, उसकी वहाँ कब्र ना हो. लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी से पता नहीं कब से सिलसिले, उन शहीद से सिलसिले शुरू हुए हैं. इस मुल्क की सियासत में है आपके बलूचिस्तान. वही जो सियासी निज़ाम जो बलूचिस्तान में, वही पंजाब में, वही सिंध में, वही खैबर पख्तूनख्वा में. आज तक कोई वज़ीर आला जो सा है, सारे वज़ीर आला तो कोई भी गैर बलोच या गैर बरावी तो वज़ीर आला नहीं बना आज तक वहाँ पे. कौन सा एहसास महरूमी का खोखला नारा जो लगाते हैं. कितनी रियासत ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने कामयाबी के कितने जीने तय किए हैं. इसलिए वो अटैक करते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन मासूम मजदूरों को भी जो वहाँ मजीद तरक्की ला सकें, क्योंकि उन्हें पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो हमें तो एक बंदा नहीं मिलना. ये बलूचिस्तान, ये तो फितरा हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान की तरक्की के मुखालिफ है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है और आपका बलूचिस्तान जानता है इसको. So me and you need to be very rest assured. The Pakistani nation needs to be very rest assured कि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया, फॉल्स प्रेमिसेस पे बना हुआ बयानिया, हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता. आपने अभी देखा नहीं कि झूठा बयानिया जो हिंदुस्तान का क्या कामयाब हो गया. कितनी बड़ी ताकत अपने आप को समझता है वो, कितना पैसा है, कितना बड़ा मीडिया उसका.
चल सका उसका झूठ? नहीं चल सका। झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। और हम हक पर हैं तो हक की हमेशा फतह होती है। रास्ता दुश्वार हो सकता है, तवील हो सकता है, लेकिन हमारे ईमान में, हमारे यकीन में कोई शक नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू विन, द स्टेट विल प्रिवेल, द पाकिस्तान विल प्रिवेल इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली नो डाउट। Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. What is our counter strategy to that, and also what are our expectations towards the Afghan government on the issue? देखिए, आपने सप्लीमेंट्री करना है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी जी सर, जैसे असगर अली मुबारक मेरा नाम है सर, जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ सी पैक के हवाले से भी हमारी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है जनाब की शुरुआत शुरू कर दी है, क्या समझते हैं इससे भी बलूचिस्तान के अंदर एक जो इस्तेकाम आएगा? जिस तरह अभी आपने बात की कि इकनॉमिकली तौर पर पाकिस्तान का हब है, और वहाँ पे जिस तरह के मनसूबे उस हिसाब में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कलीदी हैसियत है। देखिए, ये जो अफगानिस्तान की, माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव आस्क्ड फ्रॉम कुवैत न्यूज़, लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ दैट वेरी एज ओल्ड इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट दैट योर नेबर इज योर एनिमी एंड द नेबर ऑफ योर नेबर इज योर फ्रेंड। इट स्टेम्स फ्रॉम दैट। द इंडियंस हैव ट्राइड since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? कि वो अफगानिस्तान के अंदर थ्रू दी प्रॉक्सीज ओवर देयर, थ्रू लॉट ऑफ मनी दैट दे हैव पुट, थ्रू लॉट ऑफ एफर्ट, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉनेटरी, मिलिट्री, वॉट एवर दे हैव पुट, हैव दे बीन एबल टू यूज द अफगान्स इन दैट मैनर टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रिजिलिटी इन पाकिस्तान? नो. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient. One. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. लैंग्वेज की कॉमनैलिटीज़ हैं, कॉमनैलिटीज़ इन कल्चर है, रिलीजियस एफिनिटी है. सो वॉट एवर दे डू, कैन इट सप्रेस these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History इसकी गवाह है. With lot of respect. आपने मिलियंस ऑफ अफगान्स को, रेफ्यूजीज का यहाँ ख्याल किया या नहीं किया? आज भी हम जब कहते भी हैं कि ये अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है सारी और वहाँ से आ रही है, आज भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड चल रहा है या नहीं चल रहा? इवन टुडे अफगानीज कम हेयर टू गेट देयर ट्रीटमेंट. यस, दे कम. वो यहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ते हैं. तो पाकिस्तान ने तो हुस्ने सलूक किया है, तो क्या अफगानीज को ये नहीं फील होता?
तो वो जो अफगानिस्तान के एलीट पे, उनके पोर्शंस पे, उनके वारलॉर्ड्स पे मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसका यकीनन असर है, बिल्कुल आता है नजर। एंड दैट्स व्हाई वी से वेरी क्लियरली टू आवर अफगान्स दैट यू, पाकिस्तान इज अ ब्रदरली नेबरली इस्लामिक कंट्री, प्लीज डोंट हार्बर दीज टेररिस्ट्स। ये आपकी तरबियत गाहें हैं, ये इनके मराकज़ हैं, ये इनके लीडर्स हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लें। तो जहां हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है, जहां हमारा एक भाइयों का रिश्ता है जो बहुत मजबूत है और जिसको कोई नफी नहीं कर सकता, वहां हमारी स्टेट का रिजॉल्व भी है, जहां पे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लियरली कह चुके हैं, एंड वी कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली, कि हमें एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानियों पे फिर मुकद्दम है, बिकॉज नो स्टेट कैन अलाउ कि उसके सिटीजन्स को जानबूझ के एक स्टेट जो सी है उसके ऊपर हमले कराए और उनको जो सा है दहशतगर्दी का शिकार करे। सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। तो वी द इंडियंस, द हिंदुस्तानी विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन दिस कॉन्स्पिरेसी ऑल्सो। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि बड़ी हैक्टिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आपकी वजारत खारजा है, माशाल्लाह, दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, they have done a great job in this Markeh also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers, हमारे भाई हैं, हमारा हमसाया पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। उसको आप, उस हकीकत को आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते। वो जो हमारे पख्तून का और अफगानिस्तान के पख्तून का आपस का एक रिश्ता है, वो भी कभी नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह हमारे साथ एक्ट करें, जिस तरह बाकियों के साथ बॉर्डर्स हैं उस तरह आपके साथ बॉर्डर होगा, उसी तरह वीज़ा लेके आएँ, उस तरह हम भी ट्रेड करने को तैयार हैं, आप भी ट्रेड करें, हम भी ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार करें, एक दूसरे के अंदर प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी में पार्टनर्स बने एक दूसरे के, रादर देन के इस हिंदुस्तानी डिज़ाइन का ये जो एक जालमाना डिज़ाइन है डिस्टेबलाइजेशन का, उसका आलायकार ना बने। एंड they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going.